क्राफ्टली का एक बहुत ही छोटा सा यूज़ हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, लेकिन आप इसको और कौन कौन तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये आज हम देख लेंगे इस वीडियो में। तो इसके जो सबसे पॉपुलर यूज़ केसेस है उनमें से सबसे पहला है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इस पर अगर हम चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का नेम या ब्रांड मेंशन करना है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद टेल अस व्हाट यू ऑफर, आप अपने प्रोडक्ट से या ब्रांड से क्या ऑफर कर रहे हैं वो आपको लिखना है। ऑडियंस आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्राफ्ट करना है। नेक्स्ट जो है वो है पेन एजिटेड सॉल्यूशन। ये भी काफ़ी हद तक सेम ही है, इसमें भी आपको प्रोडक्ट या ब्रांड का नेम देना है, आप चाहे तो ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है, आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में कुछ लिखना है। जितना ज़्यादा आप लिख पाएंगे आउटपुट भी उतना ही अच्छा आएगा। नेक्स्ट है बुलेट टू पैराग्राफ। इस पे आपको टॉपिक या टाइटल देना है जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, 1 पॉइंट पर लाइन। ये बी एक्यूरेट और ऑडियंस का ऑप्शन ऑप्शनल है, आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्राफ्ट करना है। नेक्स्ट है ब्लॉग इंट्रोडक्शन। इसमें भी आप ब्लॉग पोस्ट का टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू राइट अबाउट ये लिख सकते हैं और ऑडियंस चूज कर सकते हैं। सपोज इसमें मैं पोस्ट टाइटल नहीं देता हूँ और बस इसमें लिख देता हूँ कि AI राइटिंग टूल्स are going to replace content writers। और ऑडियंस पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉगर्स। इसके बाद हम क्राफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक अ लिविंग ऑनलाइन देन यू हैव टू प्रोड्यूस कंटेंट, and if you want to produce a lot of content then you need an army of writers. This has been the reality of quite some time, but with advances in AI writing tools and machine learning this might soon change. The question is, will this be good or bad? To answer the question we first have to look at what these new tools are capable of doing. तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंट्रो इस AI टूल ने क्रिएट करके हमें दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि AI writing tools are going to replace content writers for bloggers. In the past few years, there has been a lot of talk about AI and its potential to automate monotonous tasks and revolutionize our lives. While some think that it will be an agent of distraction by taking away jobs, others think that it will create new opportunities, like enabling laymen to enter fields they never thought they could. And while AI is already doing wonders in fields like medicine and law, one area where its impact is most visible is in content creation. In fact, it has been so much in the news that even a layman can figure out how it works. और उसके बाद जो है थर्ड है, a lot of bloggers still rely on SEO and content writers to generate quality content for their blog. However, with the use of artificial intelligence tools like Google's AutoDraw, there is no need for an expert writer anymore. If a blogger wants to create a tutorial or an infographic about something that has complicated details, he can simply let artificial intelligence do the job. In this blog post, we will be looking at the different ways of the AI writing tools like Google's AutoDraw can be used by bloggers in future. और नेक्स्ट जो लास्ट है, big companies like Facebook, Google, Amazon and Microsoft are investing heavily in artificial intelligence tools to create content. These tools use natural language processing and crowdsourcing to get data from huge data sets. This is how they can generate articles on a wide range of topics such as sports, finance, politics, business, technology and more. Bloggers like us will soon be replaced by AI writing tools that can produce high quality articles for our blog. तो आप इसके बाद भी अगर चाहते हैं और रिजल्ट्स तो आप कीप क्राफ्टिंग पे क्लिक कर सकते हैं और ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 4 आपको मिल गया है और चाहे तो आप इसी से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे फेवरेट मार्क करके रख सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन दोनों को फेवरेट मार्क कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे आ गया है ये 2 रिजल्ट्स। ओके, तो जो नेक्स्ट यूज़ केस था वो था AIDA। मार्केटिंग का एक पॉपुलर ये थ्योरी है AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बेचना हो और उसके ऊपर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको AIDA फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए ताकि आप पहले अटेंशन क्रिएट कर सके, उसके बाद आपके ऑडियंस के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट ग्रो हो और डिज़ायर हो कि वो उसे खरीदना चाहे, और उसके बाद आपको कॉल टू एक्शन ऐड करना है ताकि वो प्रोडक्ट वो आपसे खरीदे।
तो इसमें भी आप प्रोडक्ट या ब्रांड नेम देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे दिख रहा है जो इन लोगों ने एग्जाम्पल दे रखा है, मैं यही टाइप कर देता हूँ कि स्केलिंग ई कॉमर्स ब्रांड्स, स्केलिंग ई कॉमर्स ब्रांड्स विथ मीडिया बाइंग सेलर्स, और हम क्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। और इसमें ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब आ गया है। देखिए इस पे जो पहला रिजल्ट है ये है, अटेंशन, आर यू लुकिंग टू बिकम एन ई कॉमर्स मीडिया बाइंग सेलर, और इंटरेस्ट है, द ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट ग्रू बाई 11% इन 2011 अलोन एंड इज expected to reach 1.4 trillion by 2015. There are lots of opportunities for sellers looking to scale their business, and we are here to present you with the best of them. We work with some of the most successful brands on the internet, including Sears and Brookstone. Sellers like you can reach over 3 million daily shoppers by getting your product featured on our partner site. It's a great way to boost your sales. उसके बाद डिजायर है, वी हैव ओवर 20 years of experience helping companies successfully do business online. Our team of professionals will make sure that you will get all the support you need while expanding your brand. और लास्ट में जो है एक्शन, लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग एंड वी विल प्रोवाइड यू विथ इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टनरिंग विद अस टुडे। इसके बाद एक दूसरा कॉपी भी यहाँ पे है। तो ये था 5 पॉपुलर यूज केसेस। इसके बाद अगर हम ऑल टूल्स पे चलेंगे तो ये सारे फिर से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो फ्रेमवर्क है वो है AIDA, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, बिफोर आफ्टर ब्रिज, फीचर एडवांटेज बेनिफिट, पेन एजिटेड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम प्रॉमिस प्रूफ प्रपोजल्स। इस पे भी सेम है, प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन आपको देना है, क्वालिफाई, अंडरस्टैंड, एडुकेट। इसके बाद अगर आप एक ब्लॉगर है तो ब्लॉग, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, टाइटल या टॉपिक कुछ भी आप इस टूल की मदद से जनरेट कर सकते हैं। राइटिंग पे है बुलेट टू पैराग्राफ, कंटेंट इंप्रूवर, FAQ आइडियाज, फीचर टू बेनिफिट, हेडलाइन, हीरो टेक्स्ट, कोट राइटर, सेंटेंस रीराइटर। चलिए कोट राइटर हम ट्राई करके देखते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स। इस पे एग्जांपल दिया है, आई एम ग्रेटफुल टू बी नॉमिनेटेड फॉर द हार्पर एवरी अवार्ड। चलिए मैं एक नॉर्मल सा कोट ही लिख देता हूं कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। चलिए इस पे हम क्राफ्ट इट करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से 4 रिजल्ट्स आ गए हैं। While it may seem obvious, the power of positive thinking is not only limited to a strong self-esteem and positive outlook, it's also a highly effective way to achieve goals. And contrary to popular belief, this doesn't mean that you will be successful because you believe in yourself. In fact, it is the opposite. You will likely achieve your goals because you are driven by the desire to prove to yourself that you can. और सेकंड जो है, you become what you think about. My friends say I am a positive person. I just get it from my mom. She always told me you become what you think about. एंड आई गेस इट स्टक विद मी। ऐसे ही 2 और रिजल्ट्स भी है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो राइटिंग पे और टॉपिक्स थे वो है सेंटेंस रीराइटर, सब हेडर, समराइज। इसके बाद है बिजनेस यूजेस की बिजनेस इंट्रोडक्शन, ग्रोथ आइडियाज, इंटरव्यू क्वेश्चंस। कीवर्ड जनरेटर, मार्केटिंग एंजल्स, मिशन स्टेटमेंट, नेम जनरेटर। अगर आप ई कॉमर्स के लिए इसे यूज करना चाहते हो तो ऐड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अमेजन प्रोडक्ट फीचर, कैरोसेल पोस्ट, जनरल एड कॉपी। गूगल एड टाइटल, गूगल के एड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब आप लिख सकते हो। ईमेल पे ब्रेकअप टेक्स्ट, इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाया था। कैंसिलेशन ईमेल, कैची ईमेल, कंफर्मेशन ईमेल, ईमेल पीच या फॉलो अप ईमेल हो, पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल, थैंक यू या वेलकम ईमेल भी आप इससे बना सकते हो। अगर आप सॉन्ग क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉन्ग राइट स्टार्टर, आप इसको यूज करके सॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो। ये हम देखते हैं तो जेनर हेवी मेटल रॉक यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। चलिए इसमें हम कुछ जेनर सिलेक्ट कर देते हैं कि पॉप, और व्हाट इट इज अबाउट, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं।
कि चलिए इंडियन इकोनॉमी, तो चलिए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्राफ्टली कैसा गाना बना सकता है। इस पे हम क्राफ्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग क्रिएट होके आ चुका है। तो ये तो मैं गा के नहीं सुना सकता, मुझे इसका म्यूजिक कैसा होगा नहीं पता। आप गा लेना अपने हिसाब से, आप ये सॉन्ग पढ़ सकते हो। ये वाला छोटा है, आप ट्राई करना इसे गाने का। ये वाला देखिए, आवर मनी इज ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, आवर पीपल आर सेइंग नो वी आर नॉट रेडी येट टू गिव दिस अप, द होप इज ऑल वी हैव गॉट, वी आर हंग्री फॉर चेंज कॉज एक्सक्यूजेज आर ड्राइविंग अस इनसेन, इट्स टाइम टू मेक द कॉल एंड टेक द पावर ओवर देयर। ये वाला अच्छा है, ये गाना चाहिए। और इस पे सोशल यूजेस है कि अनाउंसमेंट, पोस्ट, इवेंट डिस्क्रिप्शन, लिंक्डइन अनाउंसमेंट, फोटो कैप्शन, रिकमेंडेशन। लिंक्डइन में अब अगर आप अपने कॉलीग या किसी और को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप उस पर्सन का नाम दे दीजिए और क्या उनको स्पेशल बनाता है वो आप बुलेट या वन पर लाइन पॉइंट के हिसाब से लिखिए और क्राफ्ट कीजिए। इसके बाद यूट्यूबर है अगर आप, तो यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट आउटलाइन या फिर वीडियो टाइटल भी आप बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो देखिए ऐसे इंट्रोडक्शन या ऐसे का आउटलाइन भी है। तो चलिए ऐसे आउटलाइन हम ट्राई करके देखते हैं। टाइटल ऑप्शनल है, व्हाट आर यू राइटिंग अबाउट। चलिए इस पे हम लिख देते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट, और टाइटल में भी हम लोग लिख देंगे प्लास्टिक बैन। तो चलिए इस पे हम क्राफ्ट करके देखते हैं। तो देखिए ये जो सेक्शन क्रिएट करके इस टूल ने दिया है कि प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर सिंगल यूज आइटम, प्लास्टिक इज डिग्रेडेड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इस पे है ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन इज ऑन गोइंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक, ग्लोबल प्लास्टिक यूज इज ऑन गोइंग। टेक अवे भी दिया है, यहाँ पे 3 4 5 सेक्शन करके दिया है और एक लास्ट में टेक अवे दिया है। तो इसे यूज़ करके आप अपने ऐसे का आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऐसे का इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं। और जो था रियल एस्टेट लिस्टिंग लव लेटर, अगर आपने पिछले वीडियो देख के ब्रेकअप टेक्स्ट यूज़ कर लिया है तो आप बारी है ये लव लेटर यूज़ करने का। और है बर्थडे कार्ड। तो ऐसे इसे बहुत सारे टॉपिक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्राफ्टली एक बहुत ही अच्छा एआई राइटिंग टूल है, आप भी इसे यूज़ करके देख सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और एआई राइटिंग टूल के साथ।